Hello, everybody. Hello to all the नमस्कार, global सभी audience. को नमस्कार। We are हमारे glad वैश्विक this दर्शकों is को getting नमस्कार। bigger and हमें bigger ये every बताते हुए day. खुशी हो Thank रही you very है much for कि your ये हर support. दिन बड़ा से बड़ा We are होता जा here रहा है। on a आपके Friday, समर्थन के लिए not a बहुत-बहुत usual day for धन्यवाद। us, हम आज because we शुक्रवार को यहाँ have हैं, जो हमारे लिए सामान्य दिन नहीं news. है, I mean, क्योंकि those हमारे are पास the times असाधारण we खबर है। decide मेरा to come मतलब है, हम outside of सोमवार, America. मंगलवार और I mean, बुधवार that's के usually अलावा तभी Wednesday. आते हैं जब ऐसा कुछ हो। And if you like what और we अगर do, आपको please हमारा hit the काम like and पसंद है subscribe तो button. कृपया With लाइक the और subscribe, सब्सक्राइब बटन become a paid दबाइए। member. We will सबस्टैक पर deliver जाइए, this पेड सदस्य very बनिए। high quality intel हम ये directly to बेहद your उच्च mailbox गुणवत्ता वाली इंटेल and सीधे आपके मेल make बॉक्स में sense of all पहुंचाएंगे of the और उन सारी ताज़ा जानकारियों, ताज़ा breaking खबरों का मतलब information, समझाएंगे breaking जो news हमें that we लगभग receive हर दिन, almost लगभग every हर घंटे day, मिलती हैं। almost मेरे every प्रिय hour. मित्र और सहयोगी पेपे My dear एस्कोबार, friend and जिन्हें colleague आप पसंद Pepe करते हैं और Escobar, सम्मान देते whom हैं, you love and अब respect, मैं पेपे एस्कोबार को that सौंपता I हूँ। turn वे over to यहीं से Pepe आगे Escobar, संभालेंगे। and The he wank, will have you take that it piece of from name ago? here This is until bad. such time that he directs it back to me. Go ahead, Pepe. Thanks, Mr. Z. In fact, I will hand it back to you धन्यवाद, immediately. मिस्टर जेड। Because दरअसल मैं today तुरंत we बात are आपको ही वापस सौंपता हूँ, probably ahead of क्योंकि आज हम everybody शायद else. किसी और से पहले We can पाकिस्तान की take मौजूदा it स्थिति much को कहीं deeper ज्यादा into गहराई से समझ the सकते हैं। Pakistani situation पाकिस्तान right इस now. समय Pakistan बहुत is in असहज a स्थिति में है। very एक तरफ uncomfortable कुआं, position दूसरी between तरफ a खाई। rock and a इस hard पर हम place. घंटों चर्चा कर This is सकते हैं। something we could discuss this for और आज मैं ये भी hours. तुलना कर But रहा था today I कि will stay भारतीय on क्या कह रहे हैं, what the बेहद Indians are ज्ञानवर्धक। saying. लेकिन Immediately. सबसे पहले ठीक है, But मिस्टर first of जेड, all, कृपया हम Mr. सबको Z, समझाइए कि please पाकिस्तान enlighten रणनीतिक रूप all से of उस us बेहद on असहज भू how राजनीतिक स्थिति से Pakistan निकलने is की योजना planning कैसे बना रहा है, strategically to जिसमें escape इस from वक्त the इस्लामाबाद extremely फंसा हुआ है। uncomfortable खासकर situation ट्रंप प्रशासन की नई, Islamabad हम इसे is रणनीति in. भी नहीं कह सकते, Especially because क्योंकि of वे न the रणनीति new, बनाते हैं, we न cannot ही even कोई say ठोस चाल चलते हैं, tactics because उनकी they ताज़ा don't do हरकतों की वजह strategy, से। they don't do taxes, बात but आपके हवाले, मिस्टर shenanigans जेड। from the Trump administration. Over to you, Mr. Z. Okay, happy to provide the ठीक है, information that हमारे we पास जो have जानकारी है वह current साझा as करते of हुए खुशी an हो रही है। hour ago. ये जानकारी एक Speaking घंटे to पहले तक की people ताज़ा who है make और decisions पाकिस्तान in में फैसले लेने Pakistan. वाले लोगों से Everybody बात knows करने who पर those आधारित है। people are. हर कोई Top जानता of है the कि वे लोग list कौन हैं। is General सूची में Qasim सबसे Munir. ऊपर जनरल असीम मुनीर हैं And और ये on a बताते हुए privileged सम्मान और position सौभाग्य that महसूस the हो रहा है information that कि we हमें जो receive जानकारी comes मिलती है directly वह from सीधे his उनके दफ्तर office, से आती from है people या very उनके close to बहुत him, करीबी लोगों से or people या authorized उन लोगों से by him जिन्हें उन्होंने to हमसे us. बात करने के लिए Well, अधिकृत किया है। Pakistan, as खैर, everybody जैसा कि हर knows, कोई जानता है, was पाकिस्तान को to कूटनीतिक भाषा में use कहें a तो मिस्टर diplomatic ट्रंप ने term शीर्ष स्थान से नीचे कर दिया demoted था। by Mr. सबसे Trump पहले इसलिए from the क्योंकि top पाकिस्तान post तेहरान के because मामले में Pakistan was ईरान not के willing to नेतृत्व के do मामले में Mr. Trump's मिस्टर ट्रंप की bidding इच्छा के मुताबिक काम vis-a-vis करने को तैयार Tehran, नहीं था vis-a-vis और इसी the वजह से leadership मिस्टर in ट्रंप Iran. बहुत खुश नहीं थे। And for that reason, Mr. Trump was not very happy. Additionally, Mr. Trump knew that Pakistan was इसके अलावा providing श्री ट्रंप fuel to जानते थे Tehran कि to पाकिस्तान Iran, तेहरान को यानी overlapping ईरान routes, को 6 of जमीनी them रास्ते together, उपलब्ध करा रहा था। that essentially कुल allowed मिलाकर Iran ऐसे 6 रास्ते थे to जिनसे get ईरान को everything that दुनिया it भर wanted से to वह सब receive कुछ मिल सकता from था all जो वह over पाना the चाहता world, था। coming चीन via के China, रास्ते, coming via पाकिस्तान के Pakistan, रास्ते और coming दूसरे via मार्गों other से, routes, और इससे ईरानी and अर्थव्यवस्था that चलती kept the रही। Iranian economy इसलिए humming. ईरान और So a पाकिस्तान के decision was नेतृत्व ने made फैसला किया whereby कि दोनों देश एक leadership दूसरे in के साथ Iran तालमेल and बिठाएंगे। Pakistan चीन का that उन्हें the two समर्थन होगा countries were और going to चीन का समर्थन align बहुत together, महत्वपूर्ण होगा। backed by इससे China, ईरान very को टिके रहने का significantly मौका backed by मिलता। China, और that करीब एक घंटे would पहले allow तक मुझे जो Iran to जानकारी दी survive. गई है उसके And the मुताबिक thing that I मौजूदा hadn't been माहौल में given until ईरान about an टिकने में hour सक्षम ago, है Iran और was ईरान able ऐसा to करने के लिए survive through तैयार है। November in the current environment, and Iran is prepared to do so. So a decision was made by तो पाकिस्तान के leadership in नेतृत्व, Pakistan, ईरान के leadership नेतृत्व in Iran, और चीन के नेतृत्व ने leadership एक in फैसला China, किया। particularly चीन खास तौर important पर because अहम है China क्योंकि is इन सारे फैसलों के the पीछे power ताकत behind चीन all ही these है decisions, और हम and we इस have said चैनल this पर ये several बात times कई on बार this कह channel. चुके हैं। So तो Pakistan पाकिस्तान वह was करने not को willing तैयार to नहीं do था what जो मिस्टर Mr. ट्रंप Trump पाकिस्तान wanted से Pakistan करवाना to do, चाहते थे, which is to यानी close अपने off ट्रांजिट most रूट transit बंद routes. करना। दरअसल In fact, it did पाकिस्तान ने just इसके the ठीक opposite. उलट किया। We have हमने reported इस on चैनल this पर channel बताया है कि that ईरान से very बहुत high-level उच्च स्तरीय delegations came प्रतिनिधिमंडल from आए थे। Iran, उनका led by नेतृत्व
कई वरिष्ठ लोग कर रहे थे, जिनमें व्यापार मंत्री, विदेश मंत्री अराक्ची और ईरान के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गालिबाफ भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान के पूरे नेतृत्व से मुलाकात की, नागरिक नेतृत्व से भी और सैन्य नेतृत्व से भी। और मैं पूरे अधिकार के साथ
बिल्कुल पुष्टि करके कह सकता हूं कि पाकिस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाला है। फैसला हो चुका है और पाकिस्तान अपने सभी रास्ते खुले रखेगा। कुल मिलाकर 6 रास्ते हैं। पाकिस्तान ग्वादर की सीमा खुली रखेगा और भले ही इसमें जोखिम है, हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के लिए गंभीर जोखिम है, लेकिन ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के लिए भी गंभीर जोखिम है, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मैं ये बात पूरे वैश्विक दर्शकों से पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। ये मुझे सीधे पाकिस्तान में फैसले लेने वाले लोगों से मिली है। पाकिस्तान ने यह फैसला चीन के इस आश्वासन के आधार पर लिया कि वो उसके साथ खड़ा है और अपने आंतरिक आकलन के आधार पर भी कि आखिर मिस्टर ट्रंप जाएंगे कहां। कतर के पास पाकिस्तान जैसी ताकत नहीं है और ईरान इन मामलों पर कतर से बात नहीं करना चाहता। दरअसल जब कतर और ओमान के जरिए संपर्क किया गया तो ईरान ने ट्रंप से साफ और सीधे कहा, वापस जाइए, हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं और इस्लामाबाद एमओयू पर वापस जाना चाहते हैं। वही शुरुआती बिंदु है। तो जो खबर मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान वास्तव में मिस्टर बेसेंट की धमकियों को इतना गंभीर नहीं मानता कि वे अपनी रणनीतिक दिशा बदल दें। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है, ईरान नवंबर तक अधिकतम दबावों को झेलने में सक्षम है। यह उनका आंतरिक आकलन है और अमेरिका तथा पश्चिमी दुनिया ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तो स्थिति का यही सार है। पेपे, वापस आपके पास। Okay, Mr. Z. Thank you. There are some ठीक है मिस्टर जेड, धन्यवाद। आपने जो कहा उसमें कुछ बिल्कुल अहम बातें हैं। वे इस लिहाज से दिलचस्प हैं कि उनसे अमेरिकी सरकार की हताशा का मिला जुला रूप सामने आता है, खासकर उस खिनौने सोरोस एजेंट स्कॉट बेसेंट के जरिए, और ट्रंप के करीबी अंदरूनी घेरे की बहुत सी मनचाही उम्मीदें भी दिखती हैं। ईरानी नजरिए से आपने जो कहा कि वे नवंबर तक टिके रह सकते हैं, वह मूलतः सही है। हमें कुछ बहुत अच्छे ईरानी स्रोतों और ईरानी सरकार के आकलन से यही पता चलता है। हाँ, हम नवंबर तक हर तरह का दबाव झेल सकते हैं, क्योंकि नई ईरानी रणनीति का एक अहम आधार ट्रंप प्रशासन को थका देना है, और खास तौर पर उस 4 साल के मानसिक रूप से अस्थिर बच्चे को पूरी तरह पागल कर देना है, क्योंकि वह हर जगह घूम चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, खासकर इस समय। और ये नई व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने अभी शायद हमेशा के लिए ईरान से बात करने के लिए पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय में उनके पास मौजूद इकलौता मध्यस्थता चैनल खत्म कर दिया है। तो जब आप बहुत कूटनीतिक ढंग से कहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी स्थिति से नीचे कर दिया गया, तो ये बहुत सोच समझ कर किया गया था और इसके पीछे काफी काम था। हम पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से इस पर रिपोर्ट कर रहे थे। असल में अचानक हुए एक और नार्सिसिस्टिक दौरे की वजह से ये सब गायब हो गया। वे वही नहीं कर रहे जो मैं चाहता हूं, तो बस खत्म। लेकिन क्या कोई है, कोई देश, कोई नेतृत्व, कोई राजनीतिक तंत्र जो पिछले 2.5-3 महीनों में पाकिस्तान की भूमिका की जगह ले सकता है? नहीं, ये कतर नहीं होगा, ये ओमान नहीं होगा, ये तुर्की या मिस्र या कोई और देश नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो एक बार फिर ट्रंप प्रशासन किसी संभावित बातचीत की शुरुआत तक जाने वाले हर कूटनीतिक रास्ते पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि एमओयू एक बड़ी बातचीत की दिशा में रोड मैप था। उसे खुद ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब वह इस पूरी प्रक्रिया के असली मध्यस्थ को ही खत्म कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक, शायद अगर मैं गलत हूं तो सुधारिए, पिछले हफ्ते तक ट्रंप अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लगभग हर दिन फोन कर रहे थे और निकलने का रास्ता मांग रहे थे। begging for an off ramp. So this proves once again, not only there's no. तो यह एक बार फिर साबित करता है कि कोई समग्र रणनीति नहीं है। यह ऐसी बात है जिस पर हम में से कई लोग कई पॉडकास्ट में चर्चा कर चुके हैं,
जिनमें यहाँ ट्रांजिशन प्रोटोकॉल भी शामिल है। हर दिन, हर हफ्ते अचानक से नई नई रणनीतियां सामने आती हैं जो आमतौर पर कहीं नहीं पहुंचती। और अब अमेरिका के पास जो आखिरी हताश विकल्प बचा है, उसे हम योजना भी नहीं कह सकते। वह है सबसे भयानक चीज जिस पर व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी चर्चा हो रही है, यानी परमाणु रास्ता, सामरिक परमाणु रास्ता। यह दरअसल मानवता के लिए एक डरावनी कहानी है। इसे पहले ही सामान्य बना दिया गया है। तो जिन लोगों ने वास्तव में नरसंहार को सामान्य बना दिया, वे अब सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सामान्य बनाने की राह पर हैं। जब तक ये सिर्फ साम्राज्य करे, तब तक किसी और को इसका अधिकार नहीं है। सिर्फ जाहिर है एक तरफा साम्राज्य को। तो उनके लिए जो संभावित रास्ता बचा है वह सिर्फ यही है, अधिकतम दबाव, ईरान के खिलाफ पूरी आर्थिक और वित्तीय जंग। क्योंकि उनके दिमाग में, और मैंने इस हफ्ते इस पर एक कॉलम लिखा था जिसका शीर्षक भी यही था, ट्रंप प्रशासन ईरान को एक द्वीप में नहीं बदल सकता। लेकिन उनके दिमाग में वे सोचते हैं कि वे सचमुच ईरान को एक द्वीप में बदल सकते हैं। सबसे पहले उन्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरे, उन्हें भूगोल के बारे में भी कुछ नहीं पता। वे नक्शा तक नहीं पढ़ सकते। वे ये तक नहीं पढ़ सकते कि यूरेशिया के चौराहे पर ईरान कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर आपके सारांश पर वापस आते हैं। जैसा कि हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से नीचे कर दिया गया है। मुझे आपका कहने का तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि वह कूटनीतिक भी है, लेकिन साथ ही बहुत मजबूत भी। ईरान नवंबर तक टिक सकता है। ये बात हमने अलग अलग स्तरों और अलग अलग लहजों में कई ईरानी स्रोतों से सुनी है, क्योंकि यही उनकी योजना है। अगर हम नवंबर तक कुछ भी नहीं करते, तब भी हमारे पास कई से तंत्र हैं जो ट्रंप के हलकों में बेचैनी को और तेज कर देंगे। लेकिन जमीनी कॉरिडोरों के व्यावहारिक पहलू में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और चीन के बीच, और पाकिस्तान के रास्ते चीन से वापस ईरान तक जो व्यापार और वाणिज्य है वह प्रभावित नहीं होगा। चीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों के पीछे है। ये पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो चीनी कंपनियां बीजिंग के समन्वय में ईरान को निर्यात कर रही हैं, वे पाएंगी कि अगर उनके पास ये व्यवस्था पहले से है, तो वे अलग अलग तंत्रों को तेज कर सकती हैं जो अमेरिकी निगरानी और नियंत्रण को पूरी तरह दरकिनार कर देते हैं। सबसे बढ़कर अमेरिकी डॉलर को। सबसे पहले इसलिए कि ये सारे लेन देन पहले से ही अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करते हैं। तीसरी बात, अगर चीनी कंपनियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध या द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो एक बार फिर बीजिंग का निर्देश यही है, उन्हें नजरअंदाज करो। आप एक चीनी कंपनी हैं, इसलिए आप चीनी कानून मानते हैं, आप विदेशी कानून नहीं मानते, और हम उन पर जिस भी क्षेत्राधिकार में मामला हो मुकदमा करेंगे, तो हम इसे अमेरिकियों के खिलाफ ही पलट देंगे। तो मान लीजिए अगले 3 महीनों में ईरान के सामने कई आर्थिक समस्याएं होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके पास रूस ईरान कहें तो एक्सप्रेस है। इसे रूस और ईरान के बीच कैस्पियन एक्सप्रेस कह सकते हैं। अमेरिकियों के पास व्यापार और वाणिज्य में दखल देने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि वे कैस्पियन सागर में रूसी या ईरानी जहाजों के ऊपर नाटो के ड्रोन भेजते न रहें। और फिर जिस कहावत वाली बात के बारे में आप सोच रहे हैं, वह बहुत बुरी तरह सामने आ जाएगी। उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मेरा ख्याल है दोनों के साथ एक ही समय में ऐसा करने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। मेरा मतलब है ईरान और रूस यूक्रेन का इस्तेमाल करके जो भी हो, क्योंकि पिछली बार यूक्रेनियों को ईरान से संदेश मिला था, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अगले ही दिन यूक्रेन ने उस ड्रोन के लिए माफी मांगी जो उन्होंने कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज के खिलाफ लॉन्च किया था। तो ईरान के पास कैस्पियन है, ईरान के पास चीन ईरान रेलवे है जो तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया से होकर जाती है।
अमेरिकी क्या करेंगे? रेलवे पर फिर बमबारी करेंगे। वे चीन पर बमबारी कर रहे होंगे। चीन ने इस रेलवे का निर्माण किया और इसका खर्च उठाया। यह बेल्ट एंड रोड परियोजना है, नई सिल्क रोड। शी जिनपिंग की ईरान यात्रा से पहले वॉशिंगटन ऐसी किसी बात की उम्मीद करता है, इसलिए ऐसा होने वाला नहीं है। तो ईरान और दूसरे मध्य एशियाई साझेदारों के बीच संबंध जारी रहेंगे और यह शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा है। तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वे सभी, या कहें उनमें से ज्यादातर, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य। फिर ब्रिक्स संगठन है। मैं कहूंगा मुक्त द्विपक्षीय मंच। ब्रिक्स अगले महीने दिल्ली में है, आज से थोड़ा ज्यादा 3 हफ्तों में। शिखर सम्मेलन खुद तो एक आपदा होने वाला है, लेकिन द्विपक्षीय बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और अष्टद्विपक्षीय बैठकों के लिए वहां मौजूद होने वाला था रूस, चीन और ईरान। ये द्विपक्षीय बैठकें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही मध्य एशिया के ब्रिक्स प्लस के 2 साझेदार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी होंगे, तो वे सभी के बीच व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो अगले महीने ब्रिक्स में यही मायने रखता है, द्विपक्षीय बैठकें, न कि वास्तविक शिखर सम्मेलन, खासकर इसलिए कि ये भारत में है। और बेशक, ठीक है, तो वापस आते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से वह कमजोर कड़ी कौन सी है जहां अमेरिकी ईरानी अर्थव्यवस्था का गला घोंटने के लिए बहुत दबाव डाल सकते हैं? पाकिस्तान। वे ये कैसे करेंगे? और मेरा अगला सवाल आपसे है, मिस्टर जेड, आप इसे कैसे देखते हैं? अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग किए बिना चीन, पाकिस्तान, ईरान के व्यापार और वाणिज्य को निशाना बनाने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपना सकता है? और फिर जाहिर है, चीन सोचेगा, बिल्कुल सही, पाकिस्तान के अब अमेरिका के साथ रिश्ते भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हमारे साथ और यूरेशिया में हमारे साझेदारों के साथ रहेंगे। पाकिस्तान के साथ एक गंभीर समस्या है और वह है उसकी वित्तीय निर्भरता। IMF के वे भयानक $10 अरब जिनकी पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत है। अगर हम एक ठोस और समझदार दुनिया में रहते तो अब तक 2 चीजें हो चुकी होती। पहली, पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बन चुका होता। Number 1, Pakistan would have been a BRICS member. And number 2, Pakistan would have been a new development. और दूसरी बात, पाकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का सदस्य होता। तब ये $10 अरब उन्हें NDB से मिल सकते थे, IMF से नहीं। और ग्लोबल साउथ के लिए एक विकास बैंक होने के लिहाज से यह NDB के लिए बिल्कुल सही होता। दुर्भाग्य से हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं। दुर्भाग्य से पहले आपको NDB को पूरी तरह उलट पलट करना होगा, बल्कि बैंक के नियमों को बदलना होगा जो अमेरिकी डॉलर से जुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह बेतुका है। आपके पास ग्लोबल साउथ के लिए एक विकास बैंक है जो दुश्मन की मुद्रा में लेन देन कर रहा है। ये एक लंबी कहानी है। तो पाकिस्तान न ब्रिक्स में है न NDB में, इसलिए उन्हें IMF के पास जाना पड़ता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा नहीं है। So that's why they need to go to the IMF. And it's not only Pakistan, it's still scores of nations in the global south which are still ग्लोबल साउथ के दर्जनों देश अब भी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के कैदी हैं। उन्हें उम्मीद है कि ब्रिक्स आखिरकार अपने तौर तरीके ठीक करेगा और इन सभी देशों को ब्रिक्स तथा ब्रिक्स प्लस के दायरे में लाने का रास्ता निकालेगा। तो मेरा सवाल अब भी वही है, मिस्टर जेड। इस वक्त अपनी हालत से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास कौन से हथियार हैं? उसकी स्थिति मूलतः कुएं और खाई के बीच जैसी है। वे सीधे तौर पर अमेरिकियों को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन वे ऐसे तरीके निकाल सकते हैं कि गैस्टली, बेसेंट और उनके साथियों को लगे कि पाकिस्तान उनके फरमानों का पालन कर रहा है, जबकि साथ ही वह चीन और ईरान इन तीनों के साथ अपना कारोबार भी जारी रखे। while at the same time keeping their business with China and with Iran, the three of them. Well, I can report this maybe the first time to a खैर, global audience, शायद मैं ये पहली बार वैश्विक दर्शकों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा नहीं मानना कि ये अब तक रिपोर्ट हुआ है और ये जानकारी सीधे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से आई है,
जो पाकिस्तान के नागरिक नेतृत्व में बहुत बहुत ऊंचे पद पर हैं। ये सीधे असीम मुनीर के कार्यालय से भी आई है, बल्कि खुद उनसे। चीनियों के साथ बातचीत में, खास तौर पर विदेश मंत्री वांग यी के साथ, यह फैसला हुआ कि अगर बात हद तक पहुंचती है तो चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा ताकि पाकिस्तान अमेरिका के 10 अरब डॉलर के कर्ज के शिकंजे से निकल सके। ये बात कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई है। मुझे ये जानकारी सिर्फ लगभग 2 घंटे पहले मिली है। ये बात सीधे इशाक डार से आई है, जो उप प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने इन चर्चाओं के दौरान वांग यी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की है। इसलिए वे बहुत मुश्किल स्थिति में थे और उन्होंने तय किया कि जब निर्णायक समय आएगा तो वे चीन के साथ जाएंगे। चीन जो चाहता है उसके मुताबिक चलेंगे। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा रहे। पाकिस्तान चाहता है कि चीन अपने जमीनी गलियारों और ग्वादर बंदरगाह का विस्तार ईरान तक करे। और मैं आपसे ये पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूँ, जितनी निश्चितता मैं इस बातचीत में ला सकता हूँ, कि अगर निर्णायक समय आया तो पाकिस्तान अमेरिका से कहेगा दफा हो जाइए, और वही करेगा जो चीन पाकिस्तान से करवाना चाहता है। यानी जिस तरह वो पहले से कर रहा है उसी तरह ईरान का समर्थन करना और जारी रखना। और वास्तव में ये इससे भी ज्यादा करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में यूएई ने एक बहुत मूर्खतापूर्ण काम किया है। ईरान के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया है। इसका फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। मैं आपसे फिर से पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि यह फैसला हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मेरे पास एक और खबर है जिस पर मैंने आपसे पहले बात नहीं की थी, पेपे, लेकिन मेरा इरादा ऐसा करने का था। मुझे नेचरवान, जो कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और जनरल वहीदी के बीच हुए संपर्क के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प अतिरिक्त जानकारी मिली है। बातचीत का एक हिस्सा नेचरवान की ओर से एक संकेत था, एक संकेत की खैर अमेरिका सैन्य सत्ता हस्तांतरण यानी मार्शल लॉ का समर्थन करेगा। हम तुरंत सरकार को मान्यता दे देंगे और आप ही वह व्यक्ति होंगे जो रिश्ते की जिम्मेदारी संभालेंगे। It's a very hint, Marith S. towards us a true strength. And things will go back in a really good way. मार्शल लॉ कहाँ? माफ कीजिए, मार्शल लॉ कहाँ? अगर जनरल वहीदी उस पेशकश को स्वीकार करने वाले थे, अगर उन्होंने ट्रोजन हॉर्स बनने का फैसला किया होता, तो वही नए नेता होते। Of course, he will be the new leader. Yes. I just received this information 2 hours हाँ, ago. That's why I did not mention it to you. मुझे ये जानकारी अभी करीब 2 घंटे पहले ही मिली है, इसलिए मैंने इसका जिक्र आपसे नहीं किया था। लेकिन अब मेरे पास जानकारी का एक अतिरिक्त हिस्सा आया है। मैं इसे आप तक पहुंचा रहा हूं और बाकी दुनिया तक भी पहुंचा रहा हूं। मेरा मतलब है, जाहिर है, ये सब मेरे संपर्क को मालूम था। आसिम मुनीर के बारे में ये सुप्रीम लीडर को भी मालूम था, जिनके जरिए हमें ये जानकारी मिलती है। और इससे बस यही पता चलता है, हमें उनकी हताशा के स्तर की एक झलक मिलती है। ये ट्रंप की हताशा है। आप जानते हैं, वह बौखलाकर हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। नेचरवान ने इसका संकेत दिया था, जिसे वहीदी भड़क गए और फिर उन्होंने बातचीत बंद कर दी और उनसे कहा कि वह उन्हें दोबारा कभी फोन न करें, ऐसी किसी भी बात के साथ जो इससे मिलती जुलती हो। तो उन्होंने रिश्वत की कोशिश की है, उन्होंने आसिम मुनीर की चापलूसी की कोशिश की है, उन्होंने सैन्य कार्रवाइयों की कोशिश की है और अब वे आर्थिक कार्रवाइयों की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा। Nothing is going to work. Absolutely nothing is going to work. Very important. The decision ठीक है, of the UAE ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई का ईरान के साथ सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों को सैद्धांतिक रूप से खत्म करने का फैसला, जो व्यवहार में लगभग असंभव है, क्योंकि अगर वे इसे आधिकारिक तौर पर कर भी दें, तो अनौपचारिक रूप से काले बाजार में यह सब ऐसे ही चलता रहेगा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ईरानी नेतृत्व, ईरानी व्यक्तियों, ईरानी कंपनियों, ईरानी प्रवासी समुदाय के लोगों, ईरानी कारोबारियों और यूएई के बीच दोनों तरफ के संबंध, वाह, इनकी रकम कुछ भी हो सकती है। मैं 2000 के शुरुआती वर्षों से आंकड़े सुनता आ रहा हूँ।
मैंने हर तरह के आंकड़े सुने हैं, कुछ दसियों अरब डॉलर से लेकर कई दसियों अरब डॉलर तक, यहाँ तक कि सैकड़ों अरब डॉलर तक। of tens of billions of dollars, even hundreds of billions of dollars, and Iranian investment in the UAE. और यूएई के अलग अलग क्षेत्रों में ईरानी निवेश भी है, वे उसे रद्द नहीं कर सकते। तो यूएई शायद दोहरा खेल खेल रहा है। नहीं, दरअसल उसे अमेरिकियों को शांत भी रखना है, और साथ ही यूएई में हर जगह, खासकर दुबई और तेहरान के बीच, बहुत से लोगों का कारोबार पहले की तरह चलता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जहां तक उस कारोबार की मात्रा का सवाल है जो यूएई ईरान के संदर्भ में खो सकता है, आपने अभी कहा कि ये कारोबार पाकिस्तान में स्थानांतरित हो सकते हैं। क्या ये बात है? हाँ, वे पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। I can say this with certainty. Right. Go ahead, please. I can say this with absolute certainty because I heard. मैं ये बात पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये उन लोगों से सुना है जिन्होंने ऐसी जानकारी दी है जिसकी बाद के दिनों में हमेशा पुष्टि हुई है। इसे होने देने के लिए तैयारियां पहले से ही मौजूद हैं। उस व्यापार का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, वह चीन के साथ खड़ा होगा, वह ईरान के साथ खड़ा होगा। और अगर इससे मिस्टर ट्रंप नाराज होते हैं तो पाकिस्तान को इसकी कोई खास परवाह नहीं है। Mr. Trump, Pakistan doesn't really care. Yeah, okay, just to put it on a much bigger ठीक है, इसे जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में रखें, यानी यूरेशियाई शतरंज की बिसात पर। चीनी नजरिए से बीजिंग, इस्लामाबाद और तेहरान के बीच ये गठजोड़ पवित्र है, अगर हम पश्चिमी ईसाई शब्दावली का इस्तेमाल करें। if we can use a Western बिल्कुल। definition. You can Absolutely. Absolutely. ये अचूक है, इसे बिल्कुल छुआ नहीं आ सकता। At all. So whatever happens, this will continue because तो जो भी हो, ये जारी रहेगा, क्योंकि ये चीन के दो रणनीतिक साझेदार हैं। इसलिए चीन को पाकिस्तान की उतनी ही परवाह है जितनी ईरान की, क्योंकि वे न्यू सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ईरान के मामले में ये 25 साल का 400 अरब डॉलर का ऊर्जा और बुनियादी ढांचा समझौता है। पूरे ईरान में चीन के निवेश हैं उतने ही जितने पाकिस्तान में चीनी निवेश हैं। as much as Chinese investment. ग्वादर की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के लिए नहीं, बल्कि चीन के लिए भी। और ग्वादर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक अहम केंद्र है। तो हम सब जानते हैं कि अब से ये पहले की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत होगा, और चीनी, पाकिस्तानी और ईरानी अमेरिकी हस्तक्षेप के लिहाज से इसे पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए अतिरिक्त तंत्र ढूंढ सकते हैं। Foolproof in terms of American intervention. There is, of course, an extra. बेशक एक और तत्व है जो अब से और भी खतरनाक होता जाएगा, और वह है आतंकवाद। इसलिए हम निश्चित रूप से दोनों बलूचिस्तानों में अमेरिका समन्वित आतंकवाद की उम्मीद कर सकते हैं। सही, तो CIA, MI6 और मोसाद और भी ज्यादा सक्रिय होंगे, खासकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान में। उन सभी इकाइयों, छोटे छोटे समूहों, हाशिए के समूहों वगैरह ही की आवाजाही के साथ। फिर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में, क्योंकि वहां निगरानी बहुत सख्त है और सुरक्षा कहीं बेहतर है, तो यही उनका आम तरीका है। मैं इसे प्लान B या प्लान C भी नहीं कहूंगा, यही उनका सामान्य तौर तरीका है। अमेरिकी हर जगह पूरे ग्लोबल साउथ में आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। The Americans use terrorism everywhere, all across the global south. So this will intensify in terms of terrorism. तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में आतंकवाद के लिहाज से यह और तेज होगा। लेकिन बस इतना ही। इसके अलावा वे यूरेशिया के इन 3 खिलाड़ियों के बीच व्यापार और वाणिज्य के तंत्र के कामकाज में दखल नहीं दे सकते। तो एक बार फिर यह यूरेशिया और यूरेशियाई एकीकरण के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का एक और अध्याय है, जो पहले से भी ज्यादा कट्टरपंथी है। चीन, पाकिस्तान और ईरान का साथ मिलकर काम करना यूरेशियाई एकीकरण के और करीब आने का एक अहम उदाहरण है। शंघाई सहयोग संगठन के रणनीतिक नजरिए से ये तीनों सदस्य हैं, और ये तीनों और भी ज्यादा एकीकृत होंगे। भले ही ब्रिक्स के मामले में पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन स्थिति लगभग ऐसी है जैसे वह सदस्य हो, क्योंकि चीनी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। As if it was, because it's treated as such by the Chinese.
So once again, it's the US war तो एक बार फिर ये अमेरिका की उन व्यवस्थाओं और बहुपक्षीय संगठनों के खिलाफ जंग है जो अमेरिकियों से अलग यूरेशिया के नए स्वरूप को संगठित कर रहे हैं। और ये तो बस ऐसे और भी कई उदाहरण होंगे। मिसाल के तौर पर इस बात पर दिलचस्प चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कौन उस मशहूर सुन्नी नाटो समझौते का हिस्सा बनना चाहता है। पहले से ही दो उम्मीदवार हैं। दमिश्क के विदेश मंत्रालय से हमने सुना कि सीरिया इसमें दिलचस्पी रखता है। क्यों? तुर्की की वजह से। और हम सुन रहे हैं कि बांग्लादेश भी मक्का समझौते का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखता है। इसलिए मक्का समझौते के साथ कुछ भी हो सकता है, सचमुच कुछ भी नहीं होने से लेकर एक बार फिर एक तरह का छोटा सुन्नी बहुल संगठन बनने तक जो आम संदिग्धों के खिलाफ किसी प्रकार की सामूहिक सुरक्षा प्रदान करे। collective security against the usual suspects. Or it could be anything in between as well. या फिर बीच का कुछ भी हो सकता है। तो शतरंज की बिसात जिस तरह सचमुच दिन ब दिन बदल रही है वह दिमाग घुमा देने वाला है और हर नया तत्व बड़ी तस्वीर को और भी जटिल बना देता है। दरअसल एक ही चीज लगातार बनी हुई दिखती है। ट्रंप प्रशासन की दिशाहीनता की हद, अगर इसे हल्के शब्दों में कहें, रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, सैन्य तौर पर, आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर, और फिर ये सारी समय सीमाएं नजदीक आ रही हैं। और एक समय सीमा ऐसी भी है जो ईरानी नेतृत्व के दिमाग में है, मिड टर्म चुनाव। वे कुछ भी करेंगे, जो भी करना पड़े, ताकि ट्रंप मिड टर्म चुनाव हार जाए, और वे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। For Trump to lose the midterms, and they are on their way. Amen to everything that you just said. आपने जो कुछ अभी कहा उसके लिए आमीन। मैं हमारे सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो संपर्क हैं उनके चलते हमें ये जानने का विशेष अवसर मिलता है कि मजलिस में क्या चल रहा है। ईरान में मजलिस का सत्र चल रहा है, मजलिस यानी संसद, और वे हर दिन बहुत बहुत लंबे समय तक बैठकें कर रहे हैं और इन सभी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। और ये उल्लेखनीय है, मेरा मतलब है बिल्कुल उल्लेखनीय, कि वे पूरी मजबूती से ईरान के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती से सर्वोच्च नेता के साथ हैं, पूरी मजबूती से IRGC के नेतृत्व के साथ हैं, मोहसिन रजाई के साथ हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसके पूरी तरह समर्थन में है। इसलिए ईरान टूटने वाला नहीं है। Iran is not going to crack. Pakistan is not going to crack. We can say that पाकिस्तान टूटने वाला नहीं है। हम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं, हम ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और हम ये बड़े अधिकार के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये बात हमें फैसले लेने वाले लोगों से मिल रही है। और चीन निश्चित रूप से टूटने वाला नहीं है। चीन पाकिस्तान और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ईंट की दीवार की तरह एक बेहद मजबूत ईंट की दीवार की तरह खड़ा है। तो अगर श्री ट्रंप को कोई भ्रम है कि वे किसी भी तरह पाकिस्तान को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देंगे, उसके जमीनी रास्ते बंद करके, उसका बंदरगाह बंद करके, रास्ते बंद करके, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बंद करके, तो ऐसा नहीं होने वाला पेपे, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक परिवर्तनकारी बदलाव होगा। This is going to transformational change. Okay, but there's still a very important ठीक है, लेकिन एक बहुत अहम व्यावहारिक सवाल अभी भी है। आपके विश्लेषण के मुताबिक क्या आपको कोई संभावना दिखती है कि पाकिस्तान को जिन $1 अरब की सख्त जरूरत है वे IMF से आएं? अगर सब कुछ ढह जाता है तो क्या बैंक ऑफ चाइना आगे आएगा, और क्या ये चीन का एक दीर्घकालिक कर्ज जैसा होगा? like a Chinese loan, a long term? I have been told directly from people. मुझे सीधे उन लोगों ने बताया है जो फैसले करते हैं। मैंने आपको बताया था, इशाक डार, उप प्रधानमंत्री, मैं नाम ले रहा हूं, और ये अधिकार व अनुमति के आधार पर कह रहा हूं। उप प्रधानमंत्री जो पहले लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे, वांग यी से मिले। जब बात निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, अगर उन्हें चुनाव करना पड़ा तो वे यही चुनाव करेंगे, और चीन इसका समर्थन करेगा। ये चीन के हित में भी है। यूटा अमेरिका और खपरिशिष्ट hängavskickliga kurdjällabörs with nation is small. And Pakistan will be very happy with that. I'm sorry, Mr. Z, it's more complicated than that. माफ कीजिए मिस्टर जेड, मामला इससे ज्यादा जटिल है और अमेरिकी इसे जाने नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए यह बहुत मुश्किल होने वाला है।
लेकिन ठीक है, मेरी पसंद यह होगी कि जब ऐसा हो तब हम उससे निपटें। मगर अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए यह बेहद कठिन होगा, क्योंकि तब बाकी पूरा साम्राज्य आपके खिलाफ होगा, और ये ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं चाहता। which is something that nobody wants. Based on my information, मेरी जानकारी के मुताबिक अगर बात मजबूरी तक पहुंची तो पाकिस्तान वो कदम उठाने को तैयार है। मेरा मतलब है ये एक बड़ा फैसला है। it's a big decision. Yeah, it is. But let's wait, especially now हाँ, that we are ऐसा in है। the cornered empire. लेकिन इंतजार करें, खासकर अब जब हमें घिरे हुए ऐसे बैठ रहे हैं जो हर जगह सब कुछ खुलदम ठुलस तैयार है। हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक माफियाई व्यवस्था है जो सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सामान्य बनाने पर चर्चा कर रही है। यह हर जगह सबसे अहम और व्यापक सवाल है। तो हताशा का स्तर इस खास परमाणु स्तर तक पहुंच गया है, इसलिए कुछ भी संभव है, और इसलिए यूरेशिया के मुख्य खिलाड़ियों से जुड़े फैसले, चाहे उन्हें चीन और रूस का समर्थन हासिल हो या न हो, बहुत मायने रखते हैं। और इसमें यह भी शामिल है कि रूस अब अमेरिका को किस तरह देख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में, बहुत ही कम हफ्तों में, ये फिर इससे बदलगी स्मो, रूस ने अब आखिरकार समझ लिया है कि स्पिरिट ऑफ एंकरेज वगैरह का वह सारा विस्तृत खाबुकी नाटक पूरी तरह बकवास था। Spirit of anchorage and all that was some absolute nonsense. And they are perfectly aware that the American strategy और वे अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी रणनीति रूस के खिलाफ इस युद्ध को हमेशा चलाते रहने की है। रूसी नेतृत्व के साथ भी यही बात है। वे ये जानते हैं, और वे जानते हैं कि पीछे धकेलने का एकमात्र तरीका आक्रामक रुख अपनाना है। वे इस पर बहुत सावधानी से विचार कर रहे हैं, और ये अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है, बहुत बहुत कम हफ्तों में, यहाँ तक कि अगले महीने से ही। अगर उन्हें उकसाया गया तो वे आक्रामक रुख अपनाएंगे। वे ये पसंद करेंगे कि ट्रंप की माफिया जैसी व्यवस्था के आसपास की हर चीज अपने ही भयानक बोझ तले ढह जाए। ऐसा अभी से नवंबर के बीच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वास्तव में कोई उकसावा होता है, तो इस बार ईरान आक्रामक रुख अपनाएगा। रूस भी कमोबेश इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। The Russians have reached more or less the same conclusion. If the Europeans provoke अगर यूरोपीय लोग उसी तरह उकसाते रहे जैसे वे हाल में उकसा रहे हैं, तो रूस आक्रामक रुख अपनाएगा। दुनिया में कोई भी ये नहीं चाहता कि रूस आक्रामक हो जाए, और यह ऐसी बात है जिसे वे मूर्ख यूरोपी अब तक नहीं समझ पाए हैं। तो शतरंज की बिसात हर समय इसी तरह बदल रही है, और पीछे खड़े चीनी इसे जानते हैं। यही एक वजह है कि वे ईरान और पाकिस्तान दोनों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि खासकर अब जब उन्हें घेर लिया गया है, वे बिना किसी चेतावनी के अचानक सचमुच किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर ईरान इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए, और उनके ठीक पीछे चीनी भी इसके लिए तैयार है। ready for it. And the Chinese right behind, they are ready for it. Well, let me offer one other खैर, piece of मैं इस संदर्भ में एक और जानकारी देना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे बहुत से विश्लेषक पूरी तरह नहीं समझते। दरअसल ज्यादातर विश्लेषक इसे नहीं समझते। देखिए, पाकिस्तान ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान के साथ कुछ संवाद कर सकते हैं, क्योंकि तेहरान यही चाहता है। तेहरान चाहता है कि पाकिस्तान बीच का पक्ष बने, मध्यस्थ बने। युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिम को, ट्रंप को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम कहाँ गया है। बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। यह हर किसी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ट्रंप के लिए भी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ट्रंप के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रंप ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परमाणु बम बना सकते हैं। ट्रंप ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परमाणु बम विस्फोट कर सकते हैं। Trump is not the only one who's capable of detonating a nuclear bomb. Iran is not frightened by Trump. ईरान परमाणु उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रंप की बातों से डरा हुआ नहीं है। उन पर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ता। वे कहते हैं लेकर आइए। मेरा मतलब है, जाहिर है वे इसका स्वागत नहीं करते, लेकिन वे इसे अपने किसी और फैसले की ओर धकेलने नहीं देंगे।
और हम इस चैनल पर बार बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि वे बहुत करीब हैं। दरअसल अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी के फैसले का इंतजार है और वे परमाणु उपकरण विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अभी तक वह फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर वे फैसला करते हैं तो वे ऐसा करने में सक्षम हैं। और उस यूरेनियम का ठिकाना कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी पाने का एकमात्र रास्ता पाकिस्तान है। इसलिए सारे पत्ते सिर्फ ट्रंप के हाथ में नहीं हैं। पाकिस्तान के पास भी कुछ पत्ते हैं। मैं ये बात बार बार दोहरा सकता हूं। पाकिस्तान झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को दबाकर झुकाया नहीं जा सकता। Pakistan is not going to be pushed over. Thank you, Mr. Z. I think we can. धन्यवाद मिस्टर जेड। मेरा ख्याल है हम इसे यहीं समेट सकते हैं। आप इसे समेटना चाहते हैं? नहीं, आप आगे बढ़िए और इसे समेटिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ही समेटिए, क्योंकि ये शुक्रवार का एक विशेष कार्यक्रम है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ठीक है, अगर इस वीकेंड किसी तरह ज्वालामुखी फट जाता है तो शायद हमारा एक और विशेष कार्यक्रम होगा। Probably we're gonna have another special. Well, thank you very much to our global audience. खैर, हमारे वैश्विक दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। हम अपनी कल्पना से भी कहीं आगे बढ़ गए हैं और हमें आपका समर्थन बहुत पसंद है। हमें आपकी टिप्पणियां पसंद है। हमें ये जुड़ाव पसंद है। पेपे एस्कोबार, लैरी जॉनसन और अन्य लोगों के साथ मिलकर हमने ये समुदाय बनाया है ताकि आपको मूल्यवान जानकारी दे सकें, और हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी तक पहुंच है जो किसी और के पास नहीं है। यही वजह है कि हम अस्तित्व में आए। तो अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करें, पेड मेंबर बने। हम ये सब सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे और आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद सराहनीय है। तो सोमवार तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पेपे, कृपया आगे बढ़िए, अलविदा कहिए। आखिरी शब्द। Please go ahead, say goodbye. Final word. Cheers, everybody. सभी के नाम चीयर्स, तभी के नाम चीयर्स, just wolf hi. We are all under the volcano. All right. Tja, abgeordnet Demrith. Chat.